Welcome to one and all. We started with microprocessor 8085 from CS2. Okay, and we completed 3 topics till now, and the topics are evolution of microprocessor, basic of your microcomputer, and generic microprocessor. Okay, and I hope you all are doing well with those topics and practicing it more and more to get full marks in your board. Okay, so next topic we are doing, that is block diagram of microcomputer. Clear? हमने वो जो पहले किया था in our class number 2, lecture number 2, that was the basic of your microcomputer. अब उसमें और detail में we are having the next topic, that is block diagram of microcomputer. Let's see. We already know that microcomputer contains 4 blocks. Okay, those 4 blocks are input device, arithmetic and control unit. If you want to write, you can write it separate. Okay, so it is counted as 5 blocks. Next is program memory and data memory, and last one is output device. So we will study about these blocks in detail and the working of microcomputer. Let's see. See here, microcomputer means we already know that we are having CPU, power supply, clock, RAM, ROM, interface, keyboard, मॉनिटर, सब कुछ होगा. ओके, तो ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, लेट्स सी. इन सिंपल वे मैं पहले आपको बता रही हूँ कि कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए क्या करना है, हमें कीबोर्ड से डेटा एंटर करना है. ओके, बट कीबोर्ड में डायरेक्टली कीबोर्ड से डेटा स्क्रीन पे अपीयर नहीं होके आपको कहाँ दिखाई देगा, पहले वो कहाँ स्टोर होता है, कीबोर्ड इंटरफेस पे. ओके, देन आफ्टर दैट कीबोर्ड इंटरफेस विल give signal to MPU, okay, through interrupt line, by which MPU will come to know that data is stored here. Clear? Clock से जो सिग्नल CPU को जा रहा है, ये क्या है, it is used for speed and frequency of the CPU, to maintain the speed and frequency. कंट्रोल बस से क्या हो रहा है, it is used to control the blocks. Okay, कंट्रोल सिग्नल ये पास कर रहा है. Data bus is used to carry data. Address bus is used to carry address where data is stored. Okay, RAM is your temporary memory which is used for both read and write. ROM is your permanent memory which is read only memory. Okay, and after all the processing, your data will be stored in this display interface. Okay, and from here one by one you will get your data on screen. Okay, power supply is used for, and power lines, this is used to connect all these blocks with power. Okay, and chip select line, at a time कौन सा ब्लॉक कब वर्क कर रहा है, कहाँ से डेटा पास हो रहा है, this is because of this chip select line. Okay, so let's see the working one by one of each block. Buses in microcontroller, first of all. Okay, so we saw 3 types of bus in this structure. Let's see it one by one. Address bus is used to carry 16-bit address lines, and it is unidirectional. We already did in generic microprocessor also that address bus is used to carry 16-bit and it is in one direction. Data bus is used to carry 8-bit data and it is bidirectional. Okay, control bus is the bus through which control signals are carried out. Okay, ये सब जो भी ब्लॉक्स है उसको प्रॉपर कंट्रोल करने के लिए सिग्नल पास करता है कौन, कंट्रोल बस. ओके, एंड द कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरेटेड बाय CPU. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ओके, and after this, see, the first block is input device. Input device means what? Your keyboard. The instruction prepared for a particular program are entered through the device keyboard. Okay, तो अगर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में फीड करना है तो आप क्या करोगे, कीबोर्ड से डेटा एंटर करोगे. देन when instructions are entered through keyboard, it is not possible to feed the instructions directly to the MPU. अगर हमने कीबोर्ड से बहुत स्पीड में हम डेटा एंटर कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि
जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो फटाफट डेटा को कैच कर सकता है। क्यों? बिकॉज MPU मे बी बिजी इन परफॉर्मिंग प्रीवियस इंस्ट्रक्शन, क्योंकि MPU तो पहले से मे बी ऐसा हो सकता है कि वो बिजी हो, वो पहले से कुछ काम अपना कर रहा हो, ओके, प्रोसेसिंग का। देयरफॉर इट इज स्टोर्ड इन कीबोर्ड इंटरफेस, इसलिए क्या बना है, एक ब्लॉक है जो कीबोर्ड इंटरफेस। तो कीबोर्ड से जो भी डेटा एंटर होगा दैट इज स्टोर्ड इन कीबोर्ड इंटरफेस, ओके। अनदर रीजन टू यूज कीबोर्ड इंटरफेस इज द स्पीड, बिकॉज स्पीड ऑफ द इनपुट डिवाइस एंड MPU मे नॉट बी इक्वल, क्योंकि MPU वो तो प्रोसेसर है, उसको तो फास्ट होना है, ओके। तो ये क्यों बनाया है कीबोर्ड इंटरफेस? बिकॉज स्पीड ऑफ कीबोर्ड एंड MPU वी कांट मेक सेम, ओके, वी कांट पुट इट इन सेम वे। तो MPU का स्पीड तो हमेशा ज़्यादा होगा, इसलिए ये इंटरफेस है जिसके थ्रू कीबोर्ड से हम डेटा जो भी एंटर हो रहा है वो इंटरफेस में स्टोर होगा, और जैसे ही MPU फ्री होगा एंड सिग्नल विल गो थ्रू इंटरप्ट लाइन, ओके, यू कैन सी हियर ये जो सिग्नल जा रहा है ना इंटरप्ट के थ्रू, ये क्या बता रहा है कि कीबोर्ड इंटरफेस में डेटा है, ओके। कीबोर्ड इंटरफेस इज कनेक्टेड टू एड्रेस बस, चिप सिलेक्ट लाइन एंड कंट्रोल lines. You can see here keyboard interface is connected to chip select line and control bus and power line, okay. Now after storing the data it tells the CPU to with a special signal line that is interrupt. तो जैसे ही डेटा पूरा स्टोर हो जाता है तो एक स्पेशल लाइन सिग्नल सेंड करती है, कौन है वो? इंटरप्ट लाइन है जो CPU को जाके इन्फॉर्म करती है, ओके, दैट डेटा इज स्टोर्ड नाउ। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ इनपुट डिवाइस दैट इज कीबोर्ड एंड कीबोर्ड इंटरफेस, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, ओके, MPU एंड CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। इट कैन बी रिफर्ड एज CPU यूनिट ऑल्सो। It is main part of your system like brain of the system. CPU, और ये मैंने आपको पहले क्लास में ही बताया था कि माइक्रो प्रोसेसर अगर हम कहीं पे भी यूज कर रहे हैं सो इट इज लाइक ब्रेन ऑफ द सिस्टम। जब तक प्रोसेसर चल रहा है आपका सिस्टम भी वर्क करेगा। Whole processing and data flow is done with MPU. जो भी पूरा प्रोसेसिंग और डेटा रन हो रहा है आपका, it is because of MPU, that is microprocessor unit. Microprocessor is a controlling unit and fabricated on a small chip capable of performing three major functions. तो microprocessor क्या है? एक कोई तो small chip होगा which will be black in color, okay, और उसमें number of pins होंगे both the side. In 8085 we are having 20 pins on each side. Clear? So ऐसा कोई chip होगा black in color जिसके ऊपर बहुत सारे फंक्शंस हैं एंड इट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग 3 मेन फंक्शंस। तो वो कौन से हैं? टू रिसीव इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म। व्हाट इट मीन्स? मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज योर डेटा विल बी इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स, दैट इज 0 and 1, okay. Now second one, to process this information by means of arithmetic and लॉजिकल ऑपरेशन। तो जो भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसको आप ALU यूनिट में प्रोसेस कर रहे हो। एंड टू सेंड द रिजल्ट और इंफॉर्मेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके, मीन्स इनपुट, प्रोसेस एंड योर फाइनल आउटपुट इज द 3 मेजर फंक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर यूनिट विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन आवर फर्स्ट क्लास, ओके। नाउ द नेक्स्ट यूनिट, रोम, ओके, दैट मीन्स प्रोग्राम मेमोरी। हमने 2 पढ़ा था, मेमोरी, program memory and your data memory. So ROM is program memory, keep in mind. It contains the fixed stored program that is known as monitored program. ठीक है, इसके पास कुछ fixed stored पहले से प्रोग्राम होंगे, उनको क्या कहते हैं? monitor program. It has address bus, chip select and read select line. If you will see here in diagram, ROM के पास क्या क्या है? address bus, chip select line, ओके, यू कैन सी हियर। तो ये सब उससे कनेक्टेड हैं सारे सिग्नल्स। रोम इज रीड ओनली मेमोरी, इट इज नोन एज परमानेंट मेमोरी ऑल्सो एंड इट अलाउज ओनली रीडिंग स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। ये क्या करेगा? वी कांट चेंज इंफॉर्मेशन हियर, ओके। तो यहाँ पे क्या
कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं, विच यू ऑलरेडी नो अबाउट रोम. ओके, नाउ द नेक्स्ट यूनिट, RAM. RAM is also known as data memory. Okay, it is normally used to store data. कैसे? It is temporary storage device. Okay, we already know that RAM is volatile memory. It is temporary storage. By directional data bus is required because to read and write of data. RAM के थ्रू क्या होता है? रीड राइट दोनों काम होता है. ओके, सो उसके लिए क्या चाहिए? बाय डायरेक्शनल डेटा बस का सप्लाई चाहिए, विच यू कैन सी हियर. ओके, विच यू कैन सी हियर. रैम में देखो बाय डायरेक्शनल है. लेट मी ड्रॉ एन एरो. यू कैन सी हियर. रैम में क्या है? 2 वे का एरो है. ओके, एंड इट इज कनेक्टेड टू डेटा बस. ओके, रैम हैज एड्रेस इनपुट लाइन, चिप सिलेक्ट लाइन एंड रीड राइट इनेबल लाइन. यू कैन सी हियर रैम के पास क्या क्या है? चिप सिलेक्ट लाइन, ओके, कंट्रोल बस है, कंट्रोल बस नहीं है उसके पास, एंड एड्रेस लाइन एंड रीड राइट इनेबल लाइन्स. यू कैन सी इट हियर. इट अलाउज बोथ रीड राइट ऑपरेशन, हेंस कॉल्ड एज रैंडम एक्सेस मेमोरी. ये दोनों काम कर सकता है, इसलिए इसका नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी. ओके, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ योर रैम. Now the next block, output device. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? Similar to input device and keyboard interface, output of the system is displayed through display interface. Okay, you can see here. Like हमने क्या किया यहाँ पे? कीबोर्ड का जो भी डेटा हम एंटर कर रहे हैं हम उसको यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं. ओके, तो उसने सेम थिंग बोला है, जैसे इनपुट के लिए इंटरफेस यूज किया है, सेम वे फॉर आउटपुट इंटरफेस इज यूज्ड. ठीक है, तो जो भी डेटा प्रोसेसर प्रोसेस करेगा उसको ये इंटरफेस में स्टोर करेगा, एंड वन बाय वन विल गेट इट ऑन डिस्प्ले और ऑन स्क्रीन. ओके, द स्टोर्ड डेटा इन दिस डिस्प्ले इंटरफेस इज कंटिन्यूसली ट्रांसफर्ड टू 7 सेगमेंट. तो एक आपने लास्ट ईयर 11th में एक पढ़ा रहेगा 7 सेगमेंट्स. ओके, A B C D E F G. ओके, सो A B C D E F G ऐसा आपने 7 सेगमेंट पढ़ा होगा, बाय विच वी कैन डिस्प्ले एनीथिंग ऑन स्क्रीन. इफ यू वांट टू गिव फाइनल आउटपुट एज 0, सो ये रहेगा 0. ओके, तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज करके डेटा इज displayed on the screen. Okay, now the next one, address decoder. Where it is? You can see here it is. Okay, क्या है इसका यूज? It samples the data and select the proper device. ये क्या करेगा? डेटा को सैम्पल मीन्स अगर डेटा आपका मिक्स है तो ये सैम्पल करके मीन्स उसको उसमें से कुछ तो डेटा वो सिलेक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, एंड सिलेक्ट इट विल सिलेक्ट प्रॉपर डिवाइस ऑल्सो. क्लॉक क्या करेगा? बाय क्लॉक इसके अंदर क्या क्या वर्क होते हैं? क्लॉक एंड पावर लाइन्स. ओके, बाय क्लॉक होल सर्किटरी इज सिंक्रोनाइज्ड. क्लॉक क्या करता है? सारे सर्किट को सिंक्रोनाइज करके वर्क करता है प्रोसेसर के साथ में. ओके, एंड स्पीड ऑफ द सिस्टम इज डिपेंड ऑन द क्लॉक फ्रीक्वेंसी. क्लॉक फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा आपका प्रोसेसर उतना फास्ट वर्क करेगा. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज पावर लाइन. तो पावर सप्लाई इज necessary to operate the circuits, hence all blocks are connected to this power supply. Because power supply होगा तो ही आपके सारे blocks run होंगे, इसलिए ये power supply का line जब भी आप draw करोगे, make sure that you are drawing this line to all the blocks. Okay, power supply का line सारे blocks को जाना चाहिए. Control bus का line it should be from keyboard interface to display interface. Keep in mind. Okay. So this is all about your microcomputer block diagram with explanation for microcomputer. I hope ये simple जैसे आप कंप्यूटर पे कोई काम करते हो, it is in the same way with number of blocks. Okay, so try to do this
structure also and with theory. Okay, this is really very simple. Just you have to do practice of this structure. Okay, and the next topic will be feature of 8085 and pin diagram of 8085. This is really very much important topic. From here your actual 8085 is starting. Feature sometimes it comes for 3 mark, and pin diagram also sometimes it comes for 3 mark. Okay, so till that time practice these 4 topics so that you can get further topic very much clear. Okay, and if you are having any kind of doubt, so please mention through email or through comment. Thank you, class.